Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic that's name is plant cell and animal cell. Okay, in this topic we will study about structure of plant cells and animal cells. Okay, you know very well, plant's body is made up of by eukaryotic plant cell. Okay, and I have told you what the meaning of your eukaryotic cells. Eukaryotic cell consists well developed nucleus and well developed cell organelles. Okay, तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं their body is made up of by eukaryotic plant cells. Okay, there is one major difference between plant cell and animal cell is that in case of plant cell both cell membrane and cell wall is present. Okay, कि दोनों ही present होती हैं in case of plant cell, cell wall and cell membrane. But in case of animal cell, cell wall is absent, only cell membrane or plasma membrane, cytoplasmic membrane or plasma membrane is present. Simply we can say that cell wall is absent in case of animal cell. Okay, फिर आपको जानना है बेटा कि in case of plant cell, one special kind of cell organelles occurs that is called plastid. Plastid cell organelle is absent in animal cell. Okay, for your kind information, I am telling you, there are different types of plastid: chromoplast, chloroplast, leucoplast. Okay, chromoplast consists different kinds of pigments that gives color to flowers and vegetables. Okay, chloroplast, you know very well, chloroplast occurs in a green leaves and green fruits. Okay, green vegetables के अंदर भी chlorophyll pigment present होता है, ठीक है, and you know very well, chlorophyll pigment is essential for a process that is called photosynthesis. Plants make their own foods by themselves by the help of a reaction that is called photosynthesis, and during photosynthesis reaction solar radiations and chlorophyll pigment is essential. Clear? But you should know that this chlorophyll pigment occurs in a chloroplast, that is type of plastid. Okay, number third जो टाइप है प्लास्टिड का बेटा, इट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है बेटा, इट इज कलरलेस प्लास्टिड. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, मेनली जो फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का, इट स्टोर और रिजर्व फूड मटेरियल्स. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट और लिपिड है. जैसे हम बात करें इलियोप्लास्ट की, तो इलियोप्लास्ट स्टोर फैट और लिपिड्स. Okay, if we are talking about proteinoplast store protein. If you are talking about amyloplast store carbohydrates. ठीक है, तो मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ. ठीक है, कि one special cell organelles that is called plastid. Plastid is present in plant cell and it is absent in animal cell. Okay, there are 3 types of plastid: chromoplast, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, इट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, और लास्ट में बताया आपको मैंने ल्यूकोप्लास्ट, जिसके भी 3 टाइप्स होते हैं, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, दैट रिजर्व फूड मटेरियल्स. ओके, अच्छा, फिर एक बात आप और जाने कि यहाँ पर भी एनिमल सेल्स में एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होता है दैट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है. ठीक है, और नाम है उसका सेंट्रोजोम. क्या नाम है जी? सेंट्रोजोम. ठीक है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड फॉर्म सेंट्रियोल्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं, दे प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. ठीक है, तो ये आपको 2 मेन डिफरेंस याद रखना है. ठीक है, एक तो कौन सा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है, दूसरा प्लांट सेल्स में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है. फिर एनिमल सेल में
सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स की। सेल वॉल, मिडिल लैमेला सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कि 3 लेयर्स बताई बेटा आपको मैंने अभी। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स कौन कौन सी, एक तो जो आउटर है वो तो कौन सी हो गई बेटा, सेल वॉल। नंबर सेकंड कौन सी हो गई है, मिडिल लैमेला। नंबर थर्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक को ही समझ ले बेटा। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, जो आउटर जो मेम्ब्रेन लेयर है इन केस ऑफ न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप एंड इनर लेयर इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर, तो क्या होता है बेटा कि इनके साथ कनेक्ट होती हैं कुछ ट्यूब लाइक नेटवर्क। Okay, this tube-like network is known as ER, endoplasmic reticulum. Okay. For your kind information beta, there are 2 types of endoplasmic reticulum. Okay, SER and this one is RER. ठीक है, SER means smooth endoplasmic reticulum and RER means rough endoplasmic reticulum. Okay, बताया भी आपको मैं बेटा कि जो endoplasmic reticulum होता है इट इज ट्यूब लाइक नेटवर्क। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ठीक है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेटा जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड यू नो वेरी वेल बेटा राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। तो जिन ट्यूब्स के ऊपर ठीक है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, ठीक है, कि जो उनका जो लेयर है ट्यूब्स की लेयर वो क्या हो जाती है, रफ बन जाती है।
रफ है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और जिन ट्यूब्स के ऊपर, जिन ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। बट यू शुड नो दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लिपिड, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है बेटा, just near to nucleus, it is called गोल्जी बॉडी, ओके। क्या कहलाता है बेटा? ये गोल्जी बॉडी, ठीक है। एंड यू शुड नो दैट गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज स्टोर रूम। क्या कहलाएगा बेटा? ये स्टोर रूम, ठीक है। कि जो भी मेटल्स बनते हैं, केमिकल मेटल्स बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ RER, ठीक है। तो ये जो केमिकल मेटल्स हैं, दे आर स्टोर्ड इन स्टोर रूम, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी, ठीक है। समझे आप इसे। अब हम बात कर रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, पता होना चाहिए आपको बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि सेल हैज 3 कंपोनेंट, ठीक है। एक तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। और तीसरा न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और इसके अंदर अब आप देखें, ठीक है, कि स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप समझना कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये है लार्ज वैक्यूल। क्या है बेटा? ये लार्ज वैक्यूल्स है ये, ठीक है। सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी इन द सेंस कि जो प्लांट सेल्स होती है ना, दे कंसिस्ट लार्ज वैक्यूल, ओके। एंड एनिमल सेल कंसिस्ट स्मॉल वैक्यूल। अगर हम दोनों की तुलना करें, एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो जो लार्ज वैक्यूल है, बिग वैक्यूल, वो किसमें होगी? प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि इनसाइड प्लांट सेल्स one special cell organelle occurs that is called mitochondria. And for your kind information, mitochondria is also known as powerhouse of the cell, ठीक है। कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। एंड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप नॉर्मल समझें कि पावर हाउस जो है, पावर हाउस ऑफ द सेल और एनर्जी रूम ऑफ द सेल, बैटरी ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। फिर है कि प्रोक्सिसोम्स कंसिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। प्रोक्सिसोम, ओके। माइक्रोट्यूब्यूल्स अकर्स, लाइसोसोम अकर्स। बना देता हूँ बेटा यहाँ पर मैं कि ये जो है यहाँ पर देख लें, लाइसोसोम, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, दे कंसिस्ट लाइसोसोम, ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी नहीं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांट सेल्स कंसिस्ट करती है लाइसोसोम, ठीक है, समझें। फिर ये जैसे स्ट्रक्चर बन गई नॉर्मल बेटा प्लांट सेल्स की, ठीक है। हाँ, जो एक मेन चीज़ थी बेटा वो ये है कि इन प्लांट सेल्स के अंदर एक जो स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स था, जो एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल के अंदर। नाम क्या है उसका? प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड प्रेजेंट किसमें होते हैं? ओनली इन प्लांट सेल, दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक एक मतलब जो स्ट्रक्चर की, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर इन द सेंस
कि मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब आप जाने व्हाट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज द आउटर लेयर ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय हेमी सेलुलोज पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है। ये कुछ हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनसे सेल वॉल बनी होती है ना। सेलुलोज है, हेमिलोज है, पैक्टिन है, ठीक है। ये फिर हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो सेल वॉल होती है ना वो एक नहीं होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल वॉल। एक तो क्या है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमिला एंड प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। अब आप जाने एक एक को बेटा कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल अकर्स इन न्यू प्लांट्स, ठीक है। जो न्यू प्लांट्स होते हैं, क्रूड प्लांट्स, दे कंसिस्ट प्राइमरी सेल वॉल, ओके। जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू क्रूड सेल्स, दे कंसिस्ट प्राइमरी सेल वॉल्स आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, ओके। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी प्राइमरी सेल वॉल कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। फिर उसके बाद बनता है बेटा मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ बाय कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ओके। मिडिल लैमिला प्रोवाइड्स हेल्प टू ज्वाइन नेबरिंग सेल्स, कि जो नेबर सेल्स होती हैं उनको जोड़ने वाला काम कौन करता है, कनेक्शन वाला काम कौन करता है, मिडिल लैमिला, ओके। और जो नंबर 4 है इट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल takes place by the help of plasmodesmata, or simply we can say that plasmodesmata acts as a connecting link। कैसे काम करता है बेटा, कनेक्टिंग लिंक का और कनेक्टिंग ब्रिज का, कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ दिया। अब एक सेल से जो माल निकलेगा, जो केमिकल्स मेटल्स निकलेंगे, दे विल ट्रांसफर इनटू सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। जो नेबरिंग सेल्स है उनके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल वॉल थी बेटा, ठीक है। और प्लास्टिड के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, ठीक है। एनिमल सेल की केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ सेम रहेगा बेटा, लेकिन आपको चेंज सिर्फ एक करना है, वो सेल ऑर्गेनल्स जो हेल्प करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। बताया ना कि सेल डिवीजन में ये डुप्लीकेट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स centrioles, okay. Centrioles make some spindle fibers, okay, and these spindle fibers or proteinous fibers provides mechanical support to the cell during cell division, ठीक है। तो बनते किससे हैं वो, centrioles से। centrioles किससे बनता है, centrosome से। centrosomes कहाँ पर होता है, into the animal cell, it is absent in plant cells, okay। तो star shaped जो ये सेल ऑर्गेनल्स है, इट इज कॉल्ड सेंट्रोजोम, जो प्रेजेंट किसमें बेटा, एनिमल सेल में। और बताया था मैंने आपको कि एनिमल सेल्स में लार्ज वैक्यूल नहीं होती है, वैक्यूल तो होती है लेकिन लार्ज वैक्यूल नहीं होती है देन कंपेयर टू प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये आपने बना दी है वैक्यूल। अब ये स्ट्रक्चर होगी बेटा एनिमल सेल की, ठीक है। समझ गया आप इस चीज को। अब आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, देखो सुनो, स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको चेंज क्या करना है कि प्लांट सेल्स में तो सिर्फ क्या रखना है आपको, प्लास्टिड रखना है और लार्ज वैक्यूल बनाना है, ठीक है। और इन केस ऑफ एनिमल्स आपको प्लास्टिड जगह पे क्या रखना है, सेंट्रोजोम रखना है और वैक्यूल्स को स्मॉल कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो सेम हो गई है। अब बात चल रही है अपनी कि जो डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएट करने में ये है बेटा कि जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एनिमल सेल्स जो होती हैं दे कंसिस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो प्लांट सेल होती हैं दे कंसिस्ट बोथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑर्गेनल्स के बारे में बता दिया आपको मैंने, प्लास्टिड प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोजोम,
सेंट्रोसोम किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो यही आपके बेसिक वो बेटा डिफरेंस है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे बेटा कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।